تیرے سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے۔ احتشام الحق بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، جی خیریت سے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا، آپ کدھر رہتے ہیں؟ کہاں کے ہیں آپ؟ میں یو پی رامپور سے ہوں۔ اچھا، بریلی شریف سے ہیں؟ ہاں، سنی بریلوی ہیں نا آپ؟ جی سنی بریلوی ہیں اچھا، آپ؟ سنی بریلوی ہیں؟ نہیں وہ تو بعد میں بات بتائیں گے، آپ کا ویڈیو دیکھا آپ کہہ رہے تھے ہاں جی جی بریلوی ہے نا؟ نہیں، آپ سے بات کرنی ہے، آپ کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا، اس لیے آپ کا نمبر آپ تب بتا رہے تھے ہاں ہاں، جی آپ تبھی کہہ رہے تھے ہاں 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 کہ نہیں، مطلب میرے بات میں ہاں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ جب نہیں ہو تو منع کرو کہ ہاں نہیں ہے۔ ہاں میں آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے میرا ارے یہ اوپر ہے جی۔ یہ دیکھو یہ ہے، نہیں وہ چھوڑو، آپ فارغ کہاں سے سر؟ جھوٹ بولنے کی عادت کیوں ہے تم لوگوں کو؟ میرا بات سنو، میں دیکھو نہ میں سنی ہوں نہ بریلی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں تو مجھے بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں کہیں بیٹھا میں حنفی ہوں، ٹھیک ہے؟ ارے یار جائیے نا، آپ کیوں ابھی سردردی کر رہے ہیں؟ نہیں یار دلائل ہے تو آپ میرے سے بحث کرو۔ آپ جو ویڈیو میں الٹا سیدھا بولتے ہو، ایسے بندر بولتے ہو، کہیں ایسے بیٹھا ہوا کہیں بیٹھا ہوا ہوں، یہی سروس کرواؤ گے؟ نہیں سروس آپ میرے سے کسی ٹائم چیلنج کر سکتے ہیں، سمجھ گیا نا؟ آپ جو الٹا سیدھا بولتے ہو بیان میں، میرا بات سنو، آپ جو الٹا سیدھا بیان میں بولتے ہو، آپ کے اندر علم ہے کتنا دیوبند کے؟ آپ کہاں تک پہنچے ہوئے ہو؟ آپ لکھو میں کہہ رہا ہوں نا، دیوبند، میں کہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں یار، کیوں یہاں یہیں پہ دھلائی کرانے کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے دیکھو آپ کہیں بیٹھا ہو نا، آپ اپنا ٹائم دیجیے، میرے بحث کیجیے۔ اچھا آپ مفتی ہیں مولوی ہیں؟ نہیں میں نہ مفتی ہوں نہ مولوی ہوں۔ تو پھر میں نہیں کروں گا نا بات۔ ہاں آپ کو اگر مفتی کی سوال چاہیے، مفتی کی جواب دوں گا۔ سنو، آپ اپنے اندر کیا ہو اور آپ کو اس کی جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ میرے سوال کا جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سر پہ سوالوں کی پٹریاں باندھ کے پھرتے ہو؟ نہیں آپ جو سوال کی سوالوں کی گٹری باندھ کے پھرتے رہتے ہو یوٹیوب میں آپ کیسے ایسے باتیں کیے کہ دیوبند کا بندر ہے، ان کے اندر علم نہیں ہے؟ آپ دیوبند کی اس میں پڑھے کہاں ہو؟ دیوبند کے گہرائی میں گئے ہو کہاں بھی آپ؟ پہلے اپنا مسلک بتا دیجئے کھلم کھلا کر کے، جیسے میں نے بتایا۔ میں نے پوچھا تو تم کہہ رہے ہو ہاں ہاں، میں نے پوچھا بریلوی ہو تو ہاں ہاں کیوں کر رہے ہو؟ منع کر دو کہ نہیں ہوں، میں بریلوی نہیں ہوں، دیوبندی ہوں، بول دو۔ یہ دیوبندی بریلوی کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ سے پہلے؟ تم نے بھی تو کہا ابھی کہ نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں۔ دیوبندی اور بریلوی کیا ہوتا ہے؟ تو جب تم دیوبندی نہیں ہو، تو اپنے آپ کو حنفی کون سا والا مانتے ہو؟ تیسرا والا کون سا حنفی ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں یا تو حنفیوں میں یا تو دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں۔ تم تیسرے کون سے جو حنفی بن گئے؟ آپ کے دماغ میں جو ہے نا بھوس بھرا ہوا ہے، اس لیے آپ کو دیوبندی اور حنفی نظر آتے ہیں، بریلوی نظر آتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ میں حنفی ہوں، تو حنفی کے دو طبقے ہیں، ایک دیوبندی ایک بریلوی، یہ تیسرا طبقہ کون سا آیا ہے؟ مجھے آپ یہ سمجھا دیجیے ابھی۔ وہی تو آپ سوال کرنا چاہتا ہوں میں۔ پھر وہی بات، مجھ سے کیوں سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں ہی تم سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ دیوبند والے کو جو غلط کیوں ثابت ٹھہراتے ہیں؟ آپ کے اندر جب تم دیوبندی نہیں ہو تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے نہیں پہلے۔ برا اس لیے کسی علماء کے اوپر کیچڑ اچھالنا کتنا بڑا کیچڑ نہیں، نور حسن کیچڑ نہیں ہوتا، سچائی بیان کرتا ہے نور حسن۔ سچائی بتاؤ، سچائی کیا ہے؟ آپ علم میں گئے کہاں بھی آپ؟ دیکھیے آپ جو بھی ہو، مولانا ہو مفتی ہو، مجھے نہیں پتا، مگر آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ جو آپ لوگ مولوی مولانا بناتے ہو نا، بتاتے ہو نا، یہ لوگ سب گمراہ میں پھنسا ہوا ہے، یہ لوگ سمجھ گئے نا؟ آپ جو علم کے بات کہتے ہو، علم آپ بہت غصے میں آئے ہو، آپ کا ٹیمپریچر بہت بڑا ہوا ہے۔ سنیے، آپ کا ٹیمپریچر بہت بڑا ہوا ہے، بہت غصے میں لگ رہے ہو، تم سے ابھی بات بھی نہیں ہو پائے گی، اور میں ویسے بھی کہیں قرآن کو آپ مانتے ہو؟ الحمدللہ ہم قرآن پاک کو ہی ماننے والے ہیں، حدیث پاک کو ماننے والے ہیں، اجماع امت کو ماننے والے ہیں، قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کو کیسے جھٹلا رہے ہو؟ ہم کہاں جھٹلائے؟ میں نے کہاں جھٹلایا؟ ثابت کرو۔ آپ کے چینل میں یہ کہہ رہے کہ نبی غیب کے بعد جانتے ہیں، نبی غیب کے بعد کسے جانتے ہیں؟ بتاؤ۔ ہاں جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں بتاؤ؟ قرآن میں دلیل دو، جانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا، دلیل دو۔ جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں۔ آپ قرآن میں دلیل دیجیے کہ ہاں ہم نبی کے قرآن میں لکھا ہے کہ نبی آپ غیب کے بعد۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کی علمی صلاحیت کیا ہے؟ میں بتایا نا، میں ایک نہ چیز اہل طالب علم ہوں، سمجھ گیا؟ اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟
मैं देखो, मैं अभी आपको क्लास भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में हर चीज बताऊंगा, ठीक है? मुझे आपने ये सवाल मुझे का पता जवाब भी तो दो चले बात, कि कौन सी क्लास के बच्चे से मेरी बात हो रही है। मेरा बात सुनो, आप मुझे 2 बात किसी पर जवाब दीजिए, ठीक है? मैं एक भी बात का जवाब नहीं दूंगा, पहले क्लियर करो कि तुम हनफी देवबंदी हो या हनफी बरेलवी हो। मैं देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ, मैं देवबंद के अंदर पढ़ता हूँ। आपको देवबंद के वीडियो अंदर दिखा, पढ़ते हो या देवबंद के मदरसे के अंदर पढ़ते हो? देवबंद के अंदर में मदरसा है दारुल देवबंद, उसके अंदर पढ़ता हूँ। अच्छा, दारुल देवबंद में आप पढ़ते हो, तालीम हासिल जी। करते हो। कौन सी जमात है? 5वीं, छठी, पहली? जमात की छोड़िए, आप जमात मत लीजिए, जमात मैं आपको अपने आप को क्यों बताऊँ? आप बताइए ना कौन सा कोर्स है, कौन से आप कोर्स सिर्फ में हो अभी? आप जिसके पास क्या रहता है, अगर सवाल फिर है, वही बात, आपके पास सवाल है, आप जवाब ऐसे दे मैं सकते बातें हो नहीं ना। करता हूँ। देखो, ये नहीं, मुनाफिक देखो की 3 निशानी है जो कि अपनी मुनाफिक की निशानी नहीं होती है अपने आप को आलिम कहना, अपने आप को मुफ्ती कहना, ये क्या रसूलुल्लाह की है? हदीस है ये। फखर है? नहीं नहीं, अपने आप को मुफ्ती कहना ये फखर रसूल किसके पाक बाद की है? हदीस तकब्बुर है के बाद है। और तुम कह रहे हो कि मुनाफिक की निशानी नहीं है। क्या भाई है बताओ? रसूलुल्लाह ने जब फरमा दिया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, हम्म। वो अपनी नहीं, पहचान छुपाएगा। वो आपको मैंने ये सवाल सुनिए किया ना कि सुनिए, आप कुरान को मानते हो, तो जब कुरान को मानते हो तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह में आप अल्हम्दुलिल्लाह। दलील दीजिए, कहाँ नबी कुरान में लिखा हुआ है कि नबी गैब के बाद जानते हैं? कौन से आयत है? अच्छा, तो आप ये बता दीजिए मुझे कि नबी नहीं जानते हैं गैब? गैब का हाँ, इल्म? मैं दे रहा हूँ, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि तमूत। ये 5 बात जो है और आगे नबी को बढ़िए। मालूम नहीं थी कि अल्लाह ने कहा ना, कुरान में कहा ना। कुरान को आप सही मानते हो ना? आपका पूरा पुख्ता यकीन है कि ये 5 चीजें अल्लाह के नबी को नहीं मालूम? पूरा यकीन है? आपको कुरान में शक है क्या? मुझे तो शक नहीं है, आगे की आयत भी पढ़ लीजिए। नहीं, आगे की आयत आपको कुरान, अगर आपको कुरान में शक है तो इस सवाल का, इस 5 आयत का मुझे जवाब दीजिए, समझ गया? अच्छा, आगे की आयत तो पढ़ लीजिए पहले। मैं बताया ना, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। और आगे की भी पढ़ो। मैं बोला ना, आप आगे की पढ़ो ना। इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर आगे पढ़ूंगा, आपको मैं सुनाऊंगा पढ़ करके। अच्छा, पहले एक का जवाब तो खुलासा मिलना चाहिए, जब आगे पढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे कि आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज है आपका कुरान पढ़ने का। नहीं ही मालूम, बहुत मैं अच्छा अभी लगा इस सुन वीडियो के। में मेरा भी दिल गुस्सा से कम हो रहा है। आप जो ऐसी बातें करते जी जी, हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका दिल गुस्से में मुसलमान बहुत को कम। नफरत, सुनो, मुसलमानों को आप नफरत भेज रहे हैं, मुसलमानों को एकता होना चाहिए, मुसलमान को आपस में मिलना चाहिए। अभी हमारे हिंदुस्तान का हाल कितना बुरा हाल हो रहा है। आप वीडियो में से बात बोल रहे हैं कि मुनाफिक है, गैर मुनाफिक है, देवबंदी सिर्फ पूरा दुनिया में बोलने की आदत है क्या? बोलने की अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत। प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे, प्यार से बात कर रहा हूँ। प्यार से बात आप करेंगे या मुफ्ती, नहीं आप करेंगे? सुनो, या तो आप जाइए कॉल मुफ्ती, काट के। नहीं, आप मुफ्ती अनस से भी बात किए ना? मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ जनाब, हालांकि मैं कहीं ऐसी जगह बैठा हूँ जो गैर मुस्लिम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही तुम्हारी पिलाई करूंगा, यही धुलाई करूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, दीन की अगर राह में कोई गलत रोड़ा अटका रहा, उस वक्त इंसान को जला लिया। ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पे बहुत सारे यहाँ गैर मुस्लिम भी हैं, तुम्हारे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर यही बात कर रहा हूँ। सिर्फ आवाज आ रही है, मैं कहीं बैठा हुआ हूँ। नहीं, मुझे आवाज मैंने मना किया था आपसे, खैर कोई बात नहीं है, नहीं आ रही। आपके पास, तो जैसे कि आपने आपके पास जिस टाइम साबित भी नहीं करने दोगे ना, साबित भी नहीं। अभी बात करो अब लाइन का, तुम्हारी पिलाई होगी बढ़िया करके। आधी अधूरी बात करना पसंद नहीं करता हूँ, शुरू में ही मना किया था मैं बात नहीं करूंगा, तुम माने नहीं। इतना दिमाग खर्चा करके जाने के लिए बोल रहे हो, जाने दूंगा मैं अब तुम्हें। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तुमने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और उससे साबित ये करने की कोशिश करी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म गैब नहीं है इन 5 चीजों का। हाँ, अल्लाह के नबी को मोजिज़ा है, अल्लाह ने मोजिज़ा दिया, मोजिज़ा के जरिए बताते थे। गैब की बात अल्लाह ने भी खुद कहा, अल्लाह सहाबाए किराम ने अल्लाह ने भी पूछा है, अल्लाह के नबी ये बताओ, तुम इतना बड़बड़ा क्यों रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम इतना बड़बड़ा क्यों रहे हो? बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे, कुरान हदीस गलत क्यों? अरे गुस्सा आ रहा है तो लेटरिन में जाके बैठो, पहले लेटरिन गुस्सा खत्म कर जाओ, ठीक है? गुस्सा तुम्हें आ रहा ना, जाके पहले बाथरूम में बैठो, फिर उसके बाद बात करो। गुस्सा आ रहा है, आप ही लोग जो है ना लेटरिन बाथरूम बैठते गुस्से में, समझ गया? हम लोग गुस्सा आता है तो प्रधानमंत्री की सुन्नत को अदा करके आना, लेटरिन धोना मत, साफ करके आना, उंगली से साफ करके आना। लेटरिन में बैठ करके गुस्सा नहीं होता, और गुस्सा खत्म करना था उस बिल्ला। प्यार से बात सुनिए ना मेरी, गुस्सा खत्म हो जाएगा। हाँ बोलिए, प्यार से बात सुनिए मेरी। हाँ प्यार से बोलिए। हाँ, जैसे वो क्या क्या चीजें हैं 5, जैसे आपने कहा कि 5 चीजों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे गैब के बाद मालूम नहीं है, अल्लाह के नबी ने खुद कहा। नहीं तो वो कौन कौन सी बातें हैं वो बता दीजिए। क्या कहा कि मुझे 5 बात आवा ने किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए कि ये 5 चीज जो है हम आपके पास मालूम है? कहा अल्लाह के नबी का मुझे मालूम नहीं। कहा क्या क्या? ये मौत कब आएगी मुझे मालूम नहीं, कयामत कब आएगी ये मुझे मालूम नहीं, माँ के पेट में बच्चा है, कच्चा है, पक्का कैसा, वो मुझे मालूम नहीं। ये कौन सी हदीस है जनाब?
حدیث نہیں، قرآن ہے، قرآن تو پڑھی، پھر آیت پڑھا سنا نہیں؟ تو وہاں یہ کلام کب ہے؟ ایک منٹ ہاں وہاں یہ کلام کب ہے کہ اے محبوب تم کیا کیا جانتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یہ 5 چیزوں کا علم نہیں. یہ کہاں ہاں ہے؟ نہیں، جب کہا کہ غیب کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس پر شک کرتے ہو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایسا کہ مجھے ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے. ہاں صحابہ نے اچھا پوچھا کہ اللہ نے یہ چلیے بتاؤ آپ کی بات کو ایک منٹ ہوں، آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ ہوں، تو ہوں، اگر حضور نے ایسا فرمایا اور پھر کوئی کہتا ہے، جیسے میں ہی کہتا ہوں، مان لیجئے ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوں، ان 5 چیزوں کا علم بھی حاصل ہے اللہ کی عطا سے، ہوں۔ تو وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولیے. میں کہہ رہا ہوں جو شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کے بعد معلوم ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے اللہ تعالی ہدایت دے کہ وہ گمراہ سے بچ کر کے اپنے اس میں آ جائے. میں کسی کیا مسلم ہے لیکن اس کے اندر میں شرک پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ بات جھٹلا رہا ہے، وہ تو قرآن رسول جھٹلا پاک رہا ہے. لیکن میں رسول دیکھو آپ لوگ کے جو ہے نا مطلب اعلیٰ حضرت جتنے ماننے والے ہیں یہ لوگ ڈائریکٹ کسی کو کافر بولتے ہیں. ہم لوگ کافر بولنے کا عادت نہیں ہے. کیا کہا ہے دیکھیے حدیث میں؟ کسی مسلمان کو کافر کہنا گناہ بات کو کبیرہ ہے. بات کو تلنا دے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. ہاں بولیے. میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ان 5 چیزوں کا علم نہیں. واقعی اگر ہاں حضور کو نہیں معلوم تو پھر حضور کے نیچے والوں کو معلوم ہے؟ نہیں، کسی کو معلوم نہیں. صحابہ کرام کو؟ ہاں صحابہ خود پوچھے اللہ کے نبی، صحابہ نے خود پوچھا اللہ کے نبی سے. تابعین تابعین کو؟ ہاں تابعین کو کسی کو معلوم نہیں، غیب کے بعد کسی کو معلوم نہیں. اچھا آج کے اولیاء کرام انبیاء کرام کو؟ کسی کو معلوم نہیں. اچھا کسی کو بھی نہیں معلوم. اچھا جی. ماشاء اللہ. اگر نہیں معلوم آپ کے بقول تو پھر جی. جو یہ کہے کہ فلاں بزرگ یہ بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی یا اس کی موت یا میری موت کب آئے گی یا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، سب سے بڑا غیب تو یہی ہے نا. سب سے بڑا غیب تو خود خدا ہے. ٹھیک ہے، اب خدا کے بعد جو غیب جو 5 چیزوں میں غیب آیا وہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، یہ سب ہے نا. اچھا تو جو یہ کہے معاذ اللہ کہ فلاں بزرگ یہ بتا دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، تو اس انسان کے اوپر کیا فتویٰ آئے گا؟ شرک کا، کفر کا؟ دیکھو پہلی بات تو جو بزرگ ہوں گے، جو عالم ہوں گے، بات تو پہلی بات بتائیں گے نہیں کہ مطلب کہ تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو تمہارے لڑکا پیدا کر سکتا، اللہ چاہے نہیں انہوں نے کہا، تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے. ہاں انہوں نے میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کو پہلے سمجھیے آپ. میں سمجھا بات کو. سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں، بتائیے. اچھا تو وہ عالم نہیں ہوگا، پیر نہیں ہوگا جو ایسا بولا گیا کہ فلاں بزرگ بتا دیتے تھے. میں مانتا نہیں کوئی جو بھی عالم ہوں گے، جو بھی اچھا ایک منٹ، قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن کا منکر کافر ہے یا مسلمان؟ دیکھو کیا کہا کہ قرآن کا منکر کافر ہے یا مسلمان؟ سیدھا سیدھا جواب دو، ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا جواب دو. قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے. کافر ہے، ماشاء اللہ. سن کر بڑا جو ہے دل خوش ہوا. ہاں بولیے. قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے نا؟ ہاں. اچھا تو جو غیب رسول پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا وہی غیب دیوبندیوں کو عطا کیسے کر دیا؟ بس اتنا بتائیے. کون سی کتاب میں لکھا ہوا غیب دیوبندی کے پاس؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ بتائیے، آپ مجھے بتائیے. جناب مولویت پڑھنے کا بہت بڑا شوق ہے تمہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کا علم نہیں ہے. معلوم ہے دیوبندیت کا دفاع کرنے کا، دیوبندیت کا تجھے خاموش رہی ہے، دیوبندیت کا دفاع کرنے کا بڑا شوق ہے اور بڑا غصہ آ رہا ہے اور بڑے غصے میں دما رہے ہیں آپ. بہت غصہ آ رہا ہے. جو بھی حق کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو حق کے کاٹ دیا جائے. جاؤ پہلے حق کے اوپر بیٹھ کے آؤ، ہے نا. دیکھو آپ یہ بھی بولے کہ میں دیوبند کے شاخ میں پڑھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور آپ کے دیوبندی جماعت میں کوئی ابھی تک ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو نور حسن کو شکست دے دے. اللہ کے طرف سے انشاءاللہ. اب آپ سنیے پہلے کتاب سنیے. کتاب کا نام بتاتا ہوں. بولیے. بات ایسے جھگڑ کے نہیں ہوتی ہے، بات اطمینان سے ہوتی ہے، تسلی سے ہوتی ہے. بولیے نا. کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، لکھنے والے کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی. اچھا حکایت اولیاء. ہاں اس میں تھانوی جی اپنے گھر کے بزرگ کی تعریف کر رہے ہیں جن کا نام عبداللہ خان راجپوت تھا. برادر سے وہ راجپوت تھے، جانتے ہو آپ؟ جی بولیے نا. ہاں تو ان کے یہاں جب کوئی تعویذ لینے آتا وہ بتا دیتے تھے جہاں تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو بتا دیتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا، وہی ہوتا تھا جو بتا دیا. لڑکی بتائی تو لڑکا،
लड़की और लड़का बताया तो लड़का, यानी उसके पास कुछ ना हुआ जो उन्होंने बताया। तो ऐसा ये हो जो ऐसा है जो नहीं। अशरफ है अशरफ अली थानवी गहराई पढ़े कहाँ आप? अशरफ अली थानवी गहराई देखिए पढ़े देखिए कहीं? एक मिनट किताब लिखी है, आप उसकी गहराई पढ़े कहाँ? आप लोग देखिए बस सुनिए, सिर्फ जो सुने हैं, सुनी हुई बात को आप लेके दौड़ते हैं। अशरफ आपने अली पढ़ी है थानवी ना, आप गए कहाँ? कभी गए अशरफ अली थानवी? अशरफ अली थानवी आपने कैसे थे? गहराई पढ़ी है ना? हाँ, मैं अशरफ अली थानवी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 5 साल पढ़ा हूँ, अरबी अव्वल से लेकर पंजुम तक वहीं अशरफ अली थानवी मदरसे में, जहाँ के कबर है वहीं रहा हूँ, वहीं बच्चों में गुजरा में अपने सबक याद किया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप मुझे, आपने पहले भी कॉल की थी या नहीं की थी, ये बताइए। नहीं, मैं फर्स्ट अभी वीडियो देखा था ना, मैं आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या नाम है, आपको बात करने में बहुत शौक है, मुफ्ती अनस साहब जो है उससे आप बात कर रहे थे, मैं वीडियो में देखा तो वही मैं पूछा, तो पूछता हूँ जरा। जनाब जनाब आप, मैं फिर कहूंगा आप धोखे में हैं, अनजाने में हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं धोखे में नहीं, आप थानवी जी को एक मिनट खामाखाई की बातें नहीं, बिल्कुल भी इधर उधर के बातें बिल्कुल नहीं। बोलिए जब बोलिए रसूल बोलिए। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म नहीं दिया गया, ये इल्म गैब नहीं दिया गया, क्या औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, तो अब्दुल्ला खान राजपूत को कैसे मिल गया, और मौलवी अशरफ अली थानवी ने फिर इसकी वजाहत कैसे कर दी? जरा लगाए थानवी में कुफ्र का फतवा है, कुफ्र का फतवा तो आप लगा चुके हो, हजरत थानवी ऐसी कहीं कुफ्र का फतवा तो लगा चुके हो। दीजिए, आप मेरे मोबाइल में उसके व्हाट्सएप भेजूं, किताब पता देखूंगा, अशरफ थानवी किताब लिखा हुआ किसी और का है। आप पहली बात तो कुरान को नहीं मान रहे, कुरान को उस आयत को झुटला रहे, आप उस बात पे यकीन कीजिए कि हाँ अल्लाह के नबी गैब का बात मालूम, जब आपको मानूंगा मैं हाँ सही करे या गलत करे, आप उस बात पे यकीन नहीं करे, बात टाल कितना लंबा बात कर रहे, आप उसके भी मैं जवाब दे रहा अगर हूँ। हुआ तो अच्छा, अगर हुआ तो थानवी एक अपनी मिनट, किताब में ऐसा लिख नहीं सकता। हजरत थानवी अच्छा ने कहा कि लड़का हो सकता है, सकता का मतलब ये है कहाँ कि कहाँ इसमें- लिखा हुआ सकता है? वहाँ है नहीं कि वहाँ ऐसा लिखा ही नहीं है जैसा आप बता रहे हो। तुम्हारी शक्ति के दौर पे क्या होगा? नहीं नहीं, लड़का ऐसा होगा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, इंशाल्लाह, ऐसे कर अच्छा सकता है किसी? अच्छा ये बताइए, किसी को अपनी मौत का इल्म हो जाता है उसकी मौत से महीना भर पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले, या 1 दिन पहले, या 2 दिन पहले? देखो, मौत का इल्म नहीं होता, लेकिन मौत का नहीं होता ना? नहीं, मौत का आहट मालूम होता है, थोड़ा थोड़ा समझ गए? नहीं, ये मालूम होता है कि मैं फला वक्त फला बजे जो है मरूंगा। वक्त मुतय्यन नहीं। अब कुरान को जब मैं बोला ना, आपके मौलवी रशीद अहमद गंगोही, आपके मौलवी रशीद अहमद गंगोही इस अकीदे से भी जो है काफिर मुशरिक हो गए आपके बकौल। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने मौत के 6 दिन पहले ही ऐलान किया था, मौत के 6 दिन पहले भी उनको मौत का इंतजार था। आप तो चंद लोग हैं, चंद ये है जो आप आला से ताल्लुक रखते हैं, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप इधर उधर बोल रहे हो, रशीद अहमद बात गंगोही नहीं कर पा रहे हो। इतने बड़े मुफ्ती हैं, सुनिए, तो दुनिया उसको जानता है, दुनिया क्या, पाकिस्तान, इंग्लैंड सब उसको जानता है रशीद अहमद कैसे मुफ्ती थे। मुफ्ती आप क्या आपको मालूम है? और वो अरे नहीं भाई, सकता कि मौत को 1 महीना पहले मालूम होता है मरने वालों को, मरने 6 दिन पहले मौत का इल्म हो गया, मौत की खबर हो गई, और 6 दिन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब वक्त जुमा आया तो फिर पढ़ लिया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, समझे जनाब, और बता दिया लोगों को कि मैं इस जगह से जाने वाला हूँ जहन्नम की तरफ। कौन का? मैं कह रहा हूँ ये जहन्नम का अल्फाज मैंने लगाया है। क्यों लगा अपने तरफ से? ऐसे लगाया कि वो जहन्नम ही है तो जहन्नम नहीं कहेंगे। तो आप जब सुनो, आप जब अल्लाह आपके बकौल, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए, जहन्नमी कह रहे हैं, आपके बकौल वो काफिर मुशरिक हो गए, तो काफिर मुशरिक की जगह तो जहन्नम है। नहीं, मैं आप कह रहे हो, मैं कहाँ बोला काफिर मुशरिक है? मैं तो बोला नहीं रशीद अहमद गंगोही भाई जब कुरान पाक को मानने वाला मुसलमान नहीं, सुनो, कुरान पाक का मानने वाला, कुरान पाक को जो इनकार करता है, कुरान पाक को जो नहीं मानता, कुरान पाक को ना मानने वाला क्या है? आपने ही कहा काफिर मुशरिक है। कौन से गंगोही नहीं मानते हैं उसको, बताओ, दिखाओ किताब। अरे भाई तुम कह रहे हो अपनी जुबान वाली बात। अरे यार चुप तो आप मुझे किताब का हवाले दो, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम सेव नहीं है मेरे पास, अभी मैं भेज नहीं सकता हूँ। आप हार गए, ठीक है ना? आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। दीन के रोड़े में ऐसे गलत बात फैलाना, गुमराही। कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से हो आप? कलमा पढ़ के ईमान लाइए और आप कहाँ से? अच्छा, ठीक है, वाह वाह, मेरे ऊपर लगा दिया ना हुक्म तुमने, तुम कहते हो कि आप किसी को हुक्म नहीं लगा सकते। किसी ओलमा, अच्छा, मेरे ऊपर लगा सकते हो, तुम्हारा कोई देवन का तुम्हारा बाप होगा उसके ऊपर नहीं लगाओगे ना? नहीं, ओलमा की तौहीन, मैं आपका अब तक एक भी ओलमा का नाम लिया, एक भी रजा खान का भी किसी ओलमा को मैं गाली दिया, बुरा कहा, ऐसा बोला, क्यों नहीं? क्या ओलमा किसी मजहब पर न टका, ओलमा को बुरा मत कहो। आप ओलमा को देवबंद को बुरा कह रहे? तुम कह रहे थे मैं तमतमा रहा हूँ, गुस्से में बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा इसलिए, आप ओलमा को गलत कह रहे, ओलमा को जो है तो गलत है, तुम्हारे ओलमा यार गलत है, गलत है। आप कह रहे देवबंद के साथ में पढ़ा हूँ, पढ़े हो ना आप देवबंद के साथ में? हाँ, कितना साल पढ़े हो?
मैं 15 साल से ज्यादा इसी 15 साल नापाक जमात में रह चुका हूँ। 10-11 साल मैंने इसी जमात में आप पढ़ाई की है। इल्म हासिल कहाँ किया? हाँ, देवबंदियों में किया था। हाँ किया ना। हाँ। वही का जिस प्लेट पे खाते हो उस मैं प्लेट वो को check करते हो। हाँ? जिस प्लेट पे अच्छा खाते ये हो उस बता, प्लेट को अच्छा ये बता, आप ये बता। कौन गद्दार? सुनो, आपके जितने आला हजरत वाले सब गद्दार है, खुद ही अच्छा खारे और तू फरिश्तों को क्या कहेगा? तू फरिश्तों को क्या कहेगा? तू फरिश्तों को क्या कहेगा? फरिश्तों का उस्ताद जो है कौन है? अंग्रेज के साथ आला हजरत की जमात जो अंग्रेज के साथ ये दे रहे फतवा दे रहे थे कि अंग्रेज मेरे फरिश्तों दोस्त का है। उस्ताद कौन है? हाँ, फरिश्तों का उस्ताद कौन है? फरिश्ता का उस्ताद कौन है? हाँ, फरिश्ता किसी कभी पढ़ा ही नहीं। नहीं पढ़ेगा किसी से। अल्लाह के नूर से बना है फरिश्ता। अबे पागल कहीं के, फरिश्तों का उस्ताद शैतान था, शैतान। नहीं शैतान जन्नत में डायरेक्ट आना जाना था। वही आप शैतान लोग का वही जन्नत आप में लोग डायरेक्ट शैतान, आता जाता था। वो उस्ताद तो नहीं जब- बनेगा, अल्लाह ने सुन निकाल दिया। वही लोग आप लोग अरे तो निकाले पागल, लोग। मैं भी तो, हाँ मैं भी तो यही करता हूँ। मैं भी तो हाँ। नहीं मानता देवों के बंदरों को उस्ताद। वही तो और तू जो कह रहा है कि था, आप तू जिस कह रहा था। उस्ताद के पास सुनो, आप जिस उस्ताद के पास इल्म हासिल किए, जिसके पास पढ़े लिखे, आप कैसे शागिर्द हो उस्ताद के खिलाफ बोल रहे हो? अबे शर्म नहीं किया? जाहिल, शैतानों आपको की सुनो, शैतानों की बात आपको मानूंगा मैं। सुनो, आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है? तुझको मर जाना चाहिए। मैंने जो हवाला बताया है, हवाला अगर जिस किसी ने जिस नमक गलत को साबित खाए कर दिया, जिस नमक को खाए उस नमक को हराम कर रहे हैं आप। हैं? अगर कोई हवाला मेरा गलत साबित कर दे, समझे, हाँ वो तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 1 लाख का। 1 लाख के आप कुरान को झुठला रहे हैं। वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस 5 आयत पे आप जिस दिन पक्का इरादा कर लेंगे ना, उसी टाइम ये देवबंदी बरली सब छोड़ करके आप इंसानियत में आ जाएंगे। इंसानियत मैंने कहा आप पूरी आयत पढ़ दीजिए। आगे की आयत क्यों छोड़ रहे हो? इन्नल्लाह अलीमुल खबीर क्यों छोड़ा? पहले जब आपको एक क्यों सवाल छोड़ा? का जवाब, आपको जब एक अरे सवाल का तुमने जवाब पहले नहीं मिला, आखिरी, तो अरे भाई बाद वाली आयत क्यों छोड़ी? यही क्या साबित बोला कर दे मैंने? रही है आपको- कि अल्लाह आपको- तबारक व तआला जानने वाला है और खबर देने वाला है, बताने वाला है। मैं क्या जब अल्लाह बोला? ताला ही इल्म अता कर रहा है तो फिर तुम्हें काय का जो है खौफ क्या है? बोला? तुमको आपको काय का जब शिर्क, इस 5 कौन आयत से को शिर्क का आपको जब सांप रख रहा है? 5 का आयत आपको जब 5 आयत का दलील नहीं मिला, आप यहाँ से बात ले, कितना लंबा बात है। इस 5 आयत का आप दलील देते हो, आज आप सुनो, लंबा बात नहीं होती ना। आप सुनो, आप पूरे कुरान में से कोई एक ऐसी आयत पढ़िए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हो कि मैंने अपने नबी को गैब का इल्म अता नहीं किया। वो अल्लाह के नबी या खुद फिर कह एक रहे हैं, मिनट, अल्लाह के एक नबी मिनट, कह रहे एक हैं, अल्लाह मिनट। नहीं, झूठा है तू, 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 तू झूठा है। यहाँ पर सुन, बोलो, यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी है। और दूसरी बात सुन, दूसरी बात कुल इल्म गैब की नफी है और जाती इल्म गैब की नफी है। हम ये नहीं, चुप खामोश रहे, पहले पूरी बात सुन। इस जगह 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातें। पहली बात, कुल्ली इल्म गैब का इनकार है, कुल्ली इल्म गैब की नफी है। दूसरी बात, जाती की नफी है, अताई की कोई नफी नहीं। तीसरी बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी है। बात आ रही है में? इसका तर्जुमा कीजिए, इसका तर्जुमा करिए मुझे। अरे मानूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बगैर अता के हुजूर कुछ नहीं जानते। जानते हैं तो सब अल्लाह की अता से जानते हैं, कुछ नहीं सब अल्लाह की अता से जानते हैं। अल्लाह के बतावे जब जाती तौर पर अल्लाह के बगैर बताए, जाती तौर पर, कैसे? अरे जाती तौर पर अल्लाह के बगैर बताए। तो ये देते थे मोजज़ा अल्लाह मिलते थे, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने मोजज़ा के जरिए हर चीज को कौम को बतलाते थे। देखो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाली सरदर्द गाते हो मौलवी साहब। आप कौन सी जमात में हो तुम? आप कौन सी जमात में हो तुम? आप मौलवी हो, मुफ्ती हो, क्या हो? मैं बताया ना, अभी मैं कुछ नहीं हूँ ना। ये नंबर किसका है? ये नंबर किसका है? ये नंबर किसका है? मेरा ही है। झूठ बोल रहे हो। देख लो, चेक करो नंबर। सही में नंबर है? हाँ नंबर चेक करो, आईडी चेक करो, किसी नंबर आईडी चेक करो। हाँ चेक करो। अच्छा, किस नाम से है ये तुम्हारा नंबर? क्या नाम लिया आपने अपना? देखो मेरा नाम तशम्मुल हक है और तशम्मुल हक। हाँ यूट्यूब पे चेक कीजिए तो हाफिज। हाँ, जो मैंने तुम्हें सलाम की दुआ दी थी वो मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी मुनाफिक को, किसी बदमज़हब को, किसी बदअक़ीदे को सलामती नहीं भेजता। आप लोग ठीक है, कलमा पढ़ लीजिए का किसी मुसलमान को। मैंने कहा तुमको बरेलवी हो, तुम कहे हाँ। अरे जब तुम बरेलवी नहीं हो, देवबंदा हो, तो हाँ क्यों कह रहे थे भाई? हाँ बोला, क्यों कह रहे थे? हाँ बोला, ये बोला कि हाँ बताइए क्या बात है आपको? ये बोला हाँ बोले, देवबंदी है। मैं क्या बोला? ना देवबंदी ना बरेलवी में कुछ नहीं, ये बोला मैं। अच्छा, और अल्लाह के नबी। बहरहाल आप मुझे ये बताइए, जिस चीज को तुम अपने नबी के लिए तस्लीम नहीं करते, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, उसी को तुम अपने घर के बुजुर्गों के लिए कैसे तस्लीम कर लेते हो? बस इतना बताओ। कौन कहता है? अल्लाह के नबी की अल्लाह कौन क्या फरमाया
क्या फरमाया? अरे यार, अच्छा एक मिनट, सुनो, वल्लाहुल गनी व अंतुल फुकरा, क्या इसका तर्जुमा बताओ? वल्लाहुल गनी व अंतुल फुकरा, अल्लाह के लिए तुम सबके सब मोहताज हो। जब सबके सब मोहताज है, पीरो पैगंबर खुदा नबी सब अल्लाह के मोहताज है, तो फिर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा क्यों करें हम? कब्रों में सजदा क्यों करें? कब्रों में सजदा क्यों करते हो? जब यही बात है कि किसी के मजार पे नहीं जाना चाहिए, कब्रों की, हम कब्रों की पूजा कब, एक मिनट, कब्रों की पूजा कब करते हैं वो पहले साबित कर दीजिए कि हम लोग कब्रों की पूजा करते हैं। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह में साबित कीजिए पहले कि हम कब्रों की पूजा करते हैं, साबित कीजिए। हमारे किस आलिम ने हुक्म दिया कि कब्रों की पूजा करो? सुनो, मैं अभी गोवा में था ना, हमारे किस आलिम ने हुक्म दिया कि कब्रों की पूजा करो? बस वो दिखाओ, ज्यादा कुछ आलिम नहीं, बकवास नहीं। आपका आलिम कर रहा है ना, मैं देखा वही बात, आंखों से देखा, मैं दूरी तो आप मुझे भी तो दिखाओ। सुनो, जो पूजा करता है हम उसको नहीं मानते, जो पूजा करता है हम उसको नहीं मानते। आपका मदरसे का नाम बताता हूँ कहाँ पे। फिर वही बात, गोवा के अंदर में गया, हथौड़ा मदरसे को जानते हो? हथौड़ा मदरसे में तुम्हारे होली दिवाली होती है खूब धूमधाम से। नहीं होता है होली दिवाली, होता है, 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 तो हो नहीं सकता है। हाँ होता है। तुम्हें लग रहा है ना नहीं हो सकता? तो तुम्हारे जामिन अली जलालाबादी रंडियों को मुरीद करते थे, तुम्हारे जामिन अली जलालाबादी रंडियों को मुरीद करते थे, सहारनपुर की, सहारनपुर देवत की। बात कर रहे हो यार? अरे हकीकत कह रहा हूँ, जाके उठा लो किताब, देख लो उठा के तज़किरतुर रशीद। आप जलालाबादी मुरी शेख के आप पैर के धूल के बराबर भी नहीं, उनके पैर के फर के बराबर भी नहीं। हाँ, उसको बहुत बड़ा तौहीद में गर्क बताया गया है। आप तौहीद में बहुत बड़ा गर्क था, वो धूल के बराबर नहीं है। वो ऐसा गर्क था कि वो उसकी वही कह रही है कि मैं तेरे मुंह में पेशाब भी नहीं करना अच्छा नहीं समझते। देखो, समझा? किसी बुजुर्ग को ऐसे बोलोगे ना, अरे घामर बने की बातें छोड़ दो, डालेगा आग का घामर बने की बातें छोड़ दो। सुनो, आपका घामर बने की फिरौन और हामान का हुआ था, फिरौन वो सब तुम हो, वो सब तुम हो, नमरूद का हुआ था, ऐसे नमरूद सज्जाद के सब तुम चेले हो। नहीं, नमरूद और शैतान के चेले हो तुम लोग। शैतान बात क्या कर रहा है? इसे बात थोड़ी कहते हैं, झगड़ा कहते हैं। बात करने, आपको बात करने आता नहीं, गाली बोलना गुनाह कबीरा है, और गाली बोल रहे हो यार, कैसा बोले, कैसा बोला मुफ्ती बता रहे हो? अच्छा, तू मेरे नबी की शान में कमी निकालना आया है, ये गुनाह नहीं है? अल्लाह के नबी, मैं कुरान को बोल रहा ना। अबे जाहिल, तीन बातें मैंने बताई ना। यहाँ पर तीन चीजें लेनी होंगी। पहली बात कुल्ली इल्म की नफी है, दूसरी बात जाति की नफी है, तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तारीफ है, जब मैं तुझे बता चुका हूँ। तो तू पूरी आयत पढ़ना आगे की, आयत पढ़ आगे की। आपको 5 आयत की जवाब मांगा है, 5 आयत जिस टाइम दे दोगे उसी टाइम आगे पढ़ूंगा और आप पूरा कुरान पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन आप 5 आयत मैंने कहा ना कि अल्लाह की बगैर अता के कोई चीज, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा नहीं किया कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। अल्लाह की बगैर अता के तो कभी नहीं कहा ना कि मैं बगैर अल्लाह के अता के जानता हूँ। जब नहीं जानते नबी का दावा दिखाओ, होने की दावा काहे कर रहे हैं आप लोग? अल्लाह के नबी गैब की बात आप मुसलमानों, फैसला आपको करना है। ये देव बंदर है और इसका मैं नंबर डालूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये देव का बंदर है, इसका नंबर डालूंगा। ये कोई मुल्ला है, जमाते देवबंद का आतंकवादियों के लश्कर से है ये देवबंदी आतंकवादी है, ये देवबंदी आतंकवादी है। और ये कह रहा है कि रसूलुल्लाह ये नहीं जानते, रसूलुल्लाह वो नहीं जानते। बताइए, ये जिस नबी का कलमा पड़ता है उसी नबी की शान में कमी निकालने आया है। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, जिस नबी का कलमा पड़ता है उसी नबी की शान में कमी निकाल रहा है। हजरत वाले मेरे से मुकाबला करने आप तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। कभी भी हार खाने वाला नहीं, और आला हजरत वाला को। तुझे अपने घर की किताबों का इल्म नहीं है, तुझे तो अपने घर की किताबों का इल्म नहीं है। चल मैं कॉल कट कर रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा सबको, ठीक है ना? तेरा कॉल कट कर रहा हूँ और तुझे पता चल जाएगा। इसको मुसलमानों सारे लोग कॉल करो, सारे लोग कॉल करो, इसको इससे पूछो। देखो, और जितने भी देवबंदर हैं, जितने भी देवबंदर हैं, सब इससे पूछोगे भाई तूने जब किताबें नहीं पढ़ी है देवबंदियों की, क्यों जो है बकवास करता है? अगर कुत्ते को तेरे बड़े बड़े कार को कुछ नुकसान, और वो कुत्ता तू ही है, और वो कुत्ता तू ही है, और वो कुत्ता तू ही है। तू कह रहा था ना गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा गुस्सा आ रहा है, लैट्रिन में जाकर बैठ जा।